Hello everyone, welcome to VLearn and welcome back to the class Molecular Basis of Inheritances. In the last class of Molecular Basis of Inheritances, we studied about different experiments that proves that DNA act as genetic material. In today's class, we are basically going to study about RNA world hypothesis. So there are questions asked from RNA world hypothesis in your medical entrance examinations. Before purely moving to that part, that is RNA world hypothesis, we are going to study about some features of genetic material. So one of the features a genetic material should have is it should able to replicate. In order, in order to basically transfer its copies from the parent cell to daughter cell, from the parent cell to the next generation, it should be able to replicate. The second feature, I think, is chemically and structurally it should be a stable molecule. It should not be a fragile molecule. If it is a fragile molecule, the genetic, because it's going to perform a very important role, that is to carry the genetical information. Your character will be transferred from you to the next generation based on this genetic material. So if it is not structurally stable, all the genetic information will not be transferred from your generation, from your cells to your next generation. So it should be a stable structure. Third, what should be a character of what should as perfect genetic material? It should show the slow changes. That means it is structurally stable, chemically stable, but it should able to evolve but at a slow rate. Means it should show slow changes. Slow changes means the rate of mutation should be slow. Rate of mutation is slow, and that is the reason why we evolve. That is for evolution. That is basically for evolution. बट इट शुड नॉट बी द फास्ट. ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम धूप में बाहर जा रहे हैं और हम म्यूटेशन लेके आ रहे हैं. धूप में बाहर जा रहे हैं, म्यूटेशन लेके आ रहे हैं, मतलब बिकॉज द यूवी रेज आर प्रेजेंट इन द सोलर सिस्टम. सो द यूवी रेज इज कॉजिंग द थायमिन डाइमर फॉर्मेशन. एंड आपको पता है कि यदि थायमिन डाइमर हमारी बॉडी के अंदर बन जाते हैं तो इट मे कॉज स्किन कैंसर. तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वी आर गोइंग टू एक्सपोज विद रेडिएशन एंड योर genetic material is changing at a fast rate. If it is changing at a fast rate, then it is a problem. Because believe me, if you want to keep your genetical information safe and you want your genetical information to be passed from you to the next generation, it should be structurally stable and it should show slow changes. Because if it's not showing slow changes, instead it's going fast rate of mutation. If there is a fast rate of mutation, then there is a problem. Fourth, it should be able to express itself. It should be able to express itself. Should be able to express itself. If we talk about the genetical information, तो इसी के अंदर है सब कुछ. आपके करेक्टर कैसे होंगे, आपके नेक्स्ट जनरेशन के करेक्टर कैसे होंगे, इट इज बेसिकली एनकोडेड इन जेनेटिक मटेरियल. If it is not able to express itself, it is not decipherable. If it is not able to express itself, there is no point of containing so much information in the forms of code. ठीक है. So it is basically, it should be able to express itself. That means जैसे कि डीएनए के अंदर होता है, दैट मीन्स ट्रांसक्रिप्शन होना चाहिए उसका, ट्रांसलेशन होना चाहिए उसका. दैट इज वॉट ट्रांसक्रिप्शन. ट्रांसलेशन इज मीन्स दैट इज एक्सप्रेशन. इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इट्स फीलिंग, है ना. आप अपने अंदर कुछ भी रखे रखो, सामने वाले बंदे को थोड़ी पता लगेगा कि आप क्या कहने वाले हो, है ना. समझ रहे हो बात. तो बेसिकली आपको क्या करना है, इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस.
ठीक है, यू शुड बी एबल टू एक्सप्रेस योर सेल्फ. आपके अंदर क्या भरा हुआ है, कितना भरा हुआ है, कितना नॉलेज है, डजेंट मैटर जब तक आप उसको शो नहीं करते. ठीक है, तो इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस मतलब जब टाइम आए तब, है ना. तो यू शुड बी एबल टू एक्सप्रेस योर सेल्फ. नाउ some scientists believe that there was an RNA world. That means RNA world क्या कहता है? According to the RNA world hypothesis, RNA was the first genetic material. RNA was first genetic material. And if we see it from evolution point of view, ये correct भी है. ठीक है. If we से इट फ्रॉम द इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो जब हम वायरसेस को देखते हैं या कई और आर्टिकल्स को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि आरएनए ही बेसिकली चेंज हो करके आरएनए इज स्लोली स्लोली क्या हुआ, म्यूटेट हुआ. एंड आरएनए से आपका क्या हुआ है, डीएनए ओरिजिनेट हुआ है. ओके, क्यों हुआ भाई ऐसा? ऐसी क्या जरूरत पड़ी हमें कि आरएनए को चेंज करना पड़ा हमको डीएनए में? आरएनए तो ट्रांसक्रिप्शन भी करता है, ट्रांसलेशन भी करता है. दैट मीन्स आरएनए इज एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ. देन why RNA basically evolved? Why RNA basically evolved from RNA to DNA? ठीक है, तो आरएनए की कई चीजें ऐसी थी, कई मजबूरियां थी जिसकी वजह से आरएनए को क्या होना पड़ा, इवोल्व होना पड़ा. देखते हैं उस मजबूरियों का रीजन क्या था. पहली मजबूरी, आरएनए जो होता है, आरएनए इज रिएक्टिव. रिएक्टिव कैसे होता है देखते हैं अभी. आरएनए इज रिएक्टिव, आरएनए इज लेस स्टेबल. आरएनए इज रिएक्टिव, आरएनए इज लेस स्टेबल. बट व्हाई? ठीक है, ये तो बोल दिया कि आरएनए रिएक्टिव है, आरएनए लेस स्टेबल है, बट कैसे देखते हैं. आरएनए, इफ वी टॉक अबाउट आरएनए, we talk about RNA. RNA is single stranded molecule. RNA is single stranded molecule. So RNA is basically single stranded molecule. RNA contain only single strand. So this is the RNA molecule. And this RNA molecule is, let's say this is the uracil, this is the adenine, this is the thymine, this is the guanine, and the other molecules. So basically this is single stranded. तो होता क्या है इससे, ये जो बेस पेयर्स हैं, यूरेसिल, एडेनिन, थायमिन, ग्वाइसिन, साइटोसिन, these all base pairs are exposed. These all base pairs are exposed. ठीक है, तो वो बेसिकली जो सेल का साइटोप्लाज्म है या जो न्यूक्लियस का न्यूक्लियोप्लाज्म है उसके लिए क्या है, ये एक्सपोज्ड है. इफ ये एक्सपोज हैं, एक्सपोज मीन्स ये फ्री है. ठीक है, ये किसी के साथ में भी बॉन्डेड नहीं है. ठीक है, शुगर फॉस्फेट बैकबोन है एंड शुगर फॉस्फेट के साथ में ये नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट है. एंड दिस नाइट्रोजनस बेसिस आर बेसिकली फ्री. जो जितना ज़्यादा फ्री होता है वो उतना ज़्यादा अनस्टेबिलिटी शो करता है. ठीक है, बिकॉज दीज आर केमिकली एक्सपोज्ड, दे कैन रिएक्ट विद देयर एनवायरमेंट. जो केमिकल एनवायरमेंट में प्रेजेंट है दे आर एबल टू रिएक्ट विद दैट. ठीक है, तो दे रिएक्ट मोर. तो इनकी रिएक्टिविटी क्या है, मोर है, ज़्यादा है. ड्यू टू मोर रिएक्टिविटी दे आर लेस स्टेबल. तो सिंगल स्टैंड होना इज बेसिकली द रीजन वाई दे आर मोर रिएक्टिव एंड लेस स्टेबल. पहला रीजन. आरएनए इज ऑल्सो लेस स्टेबल. क्यों लेस स्टेबल है, एक और रीजन की बात करते हैं. ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द राइबोज शुगर. ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द राइबोज शुगर. डीएनए में राइबोज शुगर नहीं होती. डीएनए सिंगल स्ट्रैंड नहीं होता. डीएनए के अंदर डबल स्ट्रैंड्स होती है. इफ वी टॉक अबाउट डीएनए, डीएनए इज अ डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल. बिकॉज डीएनए एक डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है, वो ज़्यादा स्टेबल है. बिकॉज डीएनए में राइबोज शुगर नहीं है इसलिए वो क्या है, ज़्यादा स्टेबल है. अब राइबोज शुगर क्या करता है. If we talk about ribose sugar, the structure of ribose sugar is this. So this is the structure of ribose sugar, right? So this is the first carbon, this is the second carbon, this is the third carbon, this is the fourth carbon, and this is the fifth carbon.
which contain the OH group. So the first carbon, second carbon, third carbon, fourth carbon, and this is the fifth carbon. Right. तो ये बेसिकली जो ग्रुप है यहाँ पे आपका OH प्रेजेंट है, OH प्रेजेंट है, दिस इज दी ऑल्सो OH, दिस इज दी ऑल्सो OH, दिस इज दी H. तो होता क्या है, on the second carbon there is hydroxyl group, on the third carbon there is hydroxyl group. तो ऑक्सीजन एक रिएक्टिव मॉलिक्यूल है. ऑक्सीजन रिएक्टिव मॉलिक्यूल होने की वजह से जो ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर है, ऑफ कोर्स ऑक्सीजन के पास में जो लोन पेयर है ये आपस में क्या कर जाते हैं, रिएक्ट कर लेते हैं. एंड इस रिएक्टिविटी की वजह से दिस राइबोज शुगर इज लेस स्टेबल. ठीक है, दिस राइबोज शुगर इज लेस स्टेबल. सो दिस राइबोज शुगर इज लेस स्टेबल बिकॉज, यदि हम सही शब्दों में बोलें तो ये मतलब है कि जो सेकंड प्राइम का ऑक्सीजन ग्रुप प्रेजेंट है दैट इज मोर reactive, and due to presence of this second carbon hydroxyl group, this is less stable. दूसरा रीजन. तीसरा, यदि हम बात करें इन केस ऑफ आरएनए के अंदर यूरेसिल प्रेजेंट होता है भाई, वेरएज डीएनए के अंदर होता है थायमिन. यूरेसिल होने की वजह से भी यूरेसिल का जो स्ट्रक्चर है दैट इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू थायमिन. सो आरएनए का जो स्ट्रक्चर है दैट कंटेन यूरेसिल इंस्टेड ऑफ थायमिन, एंड यूरेसिल इज मोर रिएक्टिव देन टू द थायमिन. आपने एक प्रॉपर्टी का नाम सुना होगा आरएनए की, कि आरएनए एक्ट एज राइबोजाइम. दैट इज बेसिकली ड्यू टू द यूरेसिल. ठीक है, ये यूरेसिल की वजह से है. सो आरएनए एक्ट एज राइबोजाइम. राइबोजाइम मीन्स आरएनए एक्ट एज कैटलिस्ट, आरएनए एक्ट एज एंजाइम. तो आरएनए के पास में एंजाइमेटिक एक्टिविटी है, कैटलिस्ट एक्टिविटी है. दैट इज गुड, बट it is not a good activity in the sense that it should act as genetic material. तो आरएनए बहुत अच्छा मटेरियल है ट्रांसक्राइब करने के लिए एंड देन फर्दर ट्रांसलेशन करने के लिए, बट टू कंटेन दोज जेनेटिकल इंफॉर्मेशन इंटैक्ट, आरएनए it's not a good material. So RNA is basically a good material. So RNA is basically a good material for transferring the information. So RNA is basically a good material for transferring the information, for processing the information, but for storage of the information, for the storage of information, that is genetical information की बात हो रही है यहाँ पे. Storage of the information, DNA is a perfect material because DNA इन सारी चीज़ों को फॉलो करता है. DNA is able to replicate itself. Yes, DNA is chemically, structurally more stable. ठीक है, बिकॉज डीएनए डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल है. डीएनए के पास डीऑक्सीराइबोज शुगर प्रेजेंट है, डीएनए के पास थायमिन प्रेजेंट है. इन सब चीज़ों की वजह से डीएनए इज केमिकली एंड स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल. एंड जो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उसमें रेट ऑफ चेंज, दैट इज म्यूटेशन का रेट क्या होगा, स्लो होगा. येस, सो इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस, बट इट शुड बी शो स्लो चेंजेस. एक्सप्रेशन कर सकता है. डीएनए can be converted into RNA by the process called the transcription. So ये जो सारे characters हमने नोट किए थे ये किसके लिए हैं, डीएनए के लिए हैं. Therefore DNA act as genetic material. ठीक है, तो इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आरएनए ही था. इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आरएनए वाज द जेनेटिक मटेरियल, बट अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से जेनेटिक मटेरियल कौन सा होना चाहिए, डीएनए, क्योंकि इवोल्यूशन हो चुका है. ऑल गुड. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. I hope you liked the video. If you have any doubt regarding the RNA world hypothesis, please let me know in the comment section. And see you in the next video.